So we'll do yesterday's paper. मैं screen share कर रही हूँ क्योंकि paper नहीं है तुम लोगों के पास. So I will share the screen. Clear? Visible सबको? Yes, ma'am, visible. Yes, ma'am. अभी बड़ा पेपर डिस्कशन है, वर्कशीट नहीं है, ठीक है? तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, तुमको जहां पे भी प्रॉब्लम आए, यू हैव टू आस्क मी. So first, without actually performing the long division, state whether 23 upon 2 raised to 3 5 raised to 2 will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Without performing long division, बताओ क्या आएगा इसका? Terminating. Ma'am, terminate. Terminating. Correct? Terminating. 3 upon 2 raised to 3 5 raised to 2. It is terminating because मैम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना था. नहीं, you don't have to write. You just have to state whether it will have a terminating or non-terminating. ठीक है, उधर बोला नहीं है कि आंसर तो इसीलिए सिर्फ इतना ही. तो you have to write out it is a terminate. It will have a terminating decimal expansion. और reason अगर लिखना हो तो लिख दो as denominator is in the form of 2 raised to n, 5 raised to n. Okay, this you can write down. Next is okay. So next इसके बाद आएगा if two positive integers p and q can be expressed as p equals to aq b square and q equals to a b q c square, then you have to find what is the LCM of P and Q. What is the LCM of P and Q? बताओ. LCM का मतलब क्या होता है कि कॉमन. सबसे पहले तो LCM का मतलब होता है कि कॉमन. You have to take out जो कॉमन होता है. राइट? तो क्या आएगा कॉमन टर्म में? क्या आएगा इधर? A B. A B. Least common multiple LCM है. So least common multiple, least में हम लेते हैं highest power. Least में लेते हैं highest और highest में लेते हैं least. HCF में हम लेते हैं छोटा power और LCM में लेते हैं हम बड़ा power. तो A का सबसे बड़ा power पहले ये common और जो common नहीं है वो भी LCM में आता ही है. तो सबसे पहले ये A, उसमें बड़ा पावर कौन सा है? 3. B, बड़ा पावर कौन सा है? 3. और C तो एक ही है, वही का वही रहेगा. जो कॉमन नहीं है वो भी LCM में आता ही है. जो कॉमन नहीं है वो भी LCM में इंक्लूड होता है. So your LCM will be A cube, B cube, C square. Clear? Yes or no बेटा आंसर देते जाओ मेरे को. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. If 1 is one of the zero of the polynomial, then find the value. Okay, this was easy. Just x की value 1 रखनी है. x square minus x plus k है और में x square minus Ma'am, x. K is equal to 0. 0. You just have to put value of 1 और 1 value रख के equals to 0 रखना है. So you get k equals to 0. Correct. Next is without actual division, show that this is a non-terminating repeating decimal. Non-terminating.
सिंपली यहाँ पे सिर्फ इतना रीजन लिखना है। सबसे पहले तो देख लो 129 7 से कट होता है क्या? नहीं मैम। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट रीजन लिखना है। डिनोमिनेटर टू बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to n 5 raised to n. Here denominator is 2 raised to 2, 5 raised to 3 and 7 raised to 2, which is not in the form of this. Therefore, it will have a non-terminating decimal expansion. तुम्हें reason बताना है। तो reason क्या है इसका? कि ये non-terminating decimal expansion क्यों है? Because it is not in the form of 2 raised to n, 5 raised to n. Question number 5. HCF LCM using fundamental theorem of arithmetic. सबको आ गया बेटा? इसमें किसी को दिक्कत हुई? Question number 5 में। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. ठीक है, आगे बढ़े। उसमें प्राइम फैक्टर्स निकाल के HCF एंड LCM ही फाइंड करना था तीनों का। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये आ गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यूक्लिड Yes, डिवीजन ma'am. बेटा जिसको नहीं आए ना उनको तुरंत ही बोलना है, ठीक है ना? आई विल नॉट आस्क, यू हैव टू से, तो वो सब मैं करूंगी। So HCF 1656 and 4025, इनकी तुम्हें फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना है। 4025 1656 से डिवाइड, ओके, एंड देन यू हैव टू गो। क्या आता है इसका HCF याद है किसी को? 23। And 23. 23. Question number 7. Divide the polynomial p of x by g of x and find the remainder and quotient. Long division. Okay. ये simple तुम्हें long division ही करना है। ऐसे x cube 3x squared 5x minus 3 और यहाँ पे ये है x squared minus 3. Just simply this long division only you have to. Okay. क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, देखो ये चीज ना, कुछ चीजें बड़ा खास ध्यान रखने की। तुमको यहाँ पे रिमाइंडर एंड क्वेश्चन पूछा है, खाली डिवीजन करके छोड़ मत देना। उन्होंने जो स्पेसिफाई की है, उन्होंने जो चीज मांगी है वो तुम्हें दिखानी है। क्वेश्चन ये, रिमाइंडर ये। It should be your way of writing. Okay? मैम इसका आंसर बताएंगे एक बार? आंसर बताऊं? Ma'am, the x minus 3 is the quotient and the remainder is 7x minus 9. यस मैम। Correct. 7x minus 9. This is your remainder. And your quotient is x minus 3. Next, find the zeros of the polynomial by factorization method and verify the relation between zero and coefficient. 4x squared minus 3x minus 1. Splitting the middle term, beta. Splitting the middle term. 1 into 4. 1 4 का 4. 4 के factors निकालने हैं कि 3 आए. 0 फाइंड करना है. minus 1 4x square minus 4x plus 1 Correct. minus 1. Okay. कुछ भी कॉमन नहीं इधर, वन कॉमन ब्रैकेट सेम ही बचेगा, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। ओके, सो 4x plus 1 x minus 1, so alpha is minus 1 by 4 and beta is
हमारे अल्फा बीटा आ गए यहाँ तक। इसके बाद यू हैव टू सॉल्व अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय एन, अल्फा बीटा सी बाय। Yes, ma'am. Solve the following by substitution method. कंपल्सरी है सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। जिसने सब्स्टिट्यूशन से नहीं एलिमिनेशन से किया है उसको मैं आधा मार्क भी नहीं दूंगी, भले आंसर राइट होगा तो भी नहीं मिलेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मैम एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कौन से सम में? मैम फोर्थ जो था ना, फिफ्थ फोर्थ पे 448। तुम मेरे को लेट लेट क्यों जाते हो? जब मैं वो सम पे इधर क्यों नहीं बोलो 41008 एंड 168। इसके प्राइम फैक्टर्स बताओ क्या क्या आ रहा है तीनों में। टेल मी द प्राइम फैक्टर्स। मैम 448 का 2 raised to 6 into 7 raised to 1 6 7 raised to 1 और मैम 1008 का है 2 raised to 4 3 raised to 2 3 raised to 2 7 raised to 1 नेक्स्ट मैम 2 raised to 3 3 raised to 1 7 raised to 1। ठीक है। अब HCF में देखना है कॉमन कौन सा है। तीनों नंबर में से कौन सा नंबर कॉमन है वही पिक करना है। जो कॉमन नंबर्स है 2 and 7। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में यू हैव टू टेक द लोवेस्ट पावर। इतना बड़ा क्लियरली मैंने तुम लोगों को समझाया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टेक लोवेस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट, हाईएस्ट में लोवेस्ट, लोवेस्ट में हाईएस्ट। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF यू हैव टू टेक द लोअर पावर। ठीक है, तो छोटा पावर लेना है। तो 2 पावर 6, 2 पावर 4, 2 पावर 3, छोटा पावर हुआ 3। मेरा HCF क्या होता है? HCF ऐसा नंबर होता है जो सब फैक्टर्स में तीनों में होना चाहिए। तो वो छोटा नंबर ही हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। जैसे 2 raised to 6 2 raised to 6 होता है 8 का 64। अब 64 इधर इधर और इधर तीनों में नहीं होगा, बट ये क्या है 2 cube 8 तीनों में होगा नंबर। तो उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। नाउ सबसे पहले तो हाईएस्ट कॉमन निकालना है। कॉमन में लोएस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर लेना है, तो ये आएगा। और 7 तो तीनों सेम ही है, तो वही का वही रहेगा 7। दैट इज योर एलसीएम। एंड एलसीएम में जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है, क्योंकि उसमें हम हाईएस्ट पावर लेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर एलसीएम में है 2 पावर 6, फिर 7 तो 7 ही, और 3 में सबसे बड़ा पावर है 3 raised to 2। This is your answer. Okay? हाँ, श्लोक बोलो। सर सिंपलीफाई नहीं करना। हाँ, सिंपलीफाई कर दो, ये तो छोटा ही नंबर है ना। 8 7 कर दो। मैम 56 and 4032 मैम ये क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 5 है। नहीं मैम, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बताया था। तो अगर हम मैम दूसरे मेथड से करें तो? कौन सी मेथड बताओ? मैम वो ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब नंबर उसमें एक एक नंबर। नो, आंसर नहीं आएगा। 1/4 आ रहा है, तुम फ्रैक्शन लोगे क्या ट्रायल एंड एरर में? नहीं मैम, जैसे उसमें 1 लिया मैंने फैक्टर, तो फिर x - 1 मेरा पहला आ गया। उसके बाद मैंने उसको डिवाइड किया, तो फिर जो इक्वेशन मिली मुझे, उससे मुझे मिल गए -1/4 और 1। हाँ, ठीक है। Use of the polynomial। ठीक है, ओके। सही है ना मैम? हाँ, चलेगा चलेगा बेटा।
बट वो क्या है कि तुम्हारा रिलायबल मेथड नहीं हुआ। सपोज एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस ऐसे, राइट, बोथ आर इन फ्रैक्शन, एक -3/2 -5/2। तुम ट्रायल एरर में कभी भी फ्रैक्शन नहीं रखोगे ना, 1 और -1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, उसके आगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो इतना रिलायबल मेथड नहीं है। और एज मैंने बोला, एक मिनट अपने मैथ्स के पेपर के लिए ना बेटा, एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रैटेजी तुम अभी से ही बनानी है तुमको कि ऐसे समझ आए तो मैं यही मेथड, कभी भी कोई न्यू मेथड हम बोर्ड में तो ट्राई नहीं करने वाले अनलेस अपने पास बहुत फ्री टाइम पड़ा हो तो हम वो करेंगे कि आप कुछ बचा के सब कुछ कर लिया है, जो समझ नहीं आते उसमें तुम अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट बाकी जो सम्स जो मेथड तुमको आती है ना, उसकी स्ट्रैटेजी पूरे साल एक ही रहनी चाहिए, तुम्हारी मेथड जो तुमको कन्वीनियंट हो। आई डोंट माइंड इन दैट, बट योर मेथड शुड बी सच दैट कि फिर वो सब सम्स के लिए चले बेटा। अब तुमने इसमें तो ट्रायल एरर कर दिया, हो गया, दूसरे सम में नहीं हुआ, फिर तुम अटके। नहीं मैम, आपने वहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन मेथड लिखा था ना, तो मेरे को लगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होगा, इसके लिए फिर मैंने वो वाला मेथड यूज किया। फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ही होता है, उसका नाम ही वो होता है। कंफ्यूज हो गई थी, इसके लिए मैंने फिर उस वाले मेथड से। बाय फैक्टराइजेशन मेथड मतलब सेम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, एक ही तो मेथड है बेटा, जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल आता है उसमें एक ही तो हमने मेथड की थी, हमने दूसरी तो मेथड ही नहीं की थी, राइट। सो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ही होगा उसमें। तुमने जो किया उसमें राइट है, यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट, उसमें मार्क्स कट भी होगा अगर आंसर राइट है तो, बट वो मेथड सब में नहीं चल पाएगी, इसीलिए मैम मैं कंफ्यूज हो गई थी, इसके लिए फिर मैंने वो मेथड किया। अगर मेरे को पता होता तो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही करती। Okay, next is 9th. Okay, substitution method. सबको clear बेटा कि करूं? Question फिर बता दो मैम सिर्फ। क्लियर। मैम एक Clear, बार ma'am. करो ना मैम, एक बार। इसमें कौन से इक्वेशन से निकालेंगे? इक्वेशन नंबर 3 बताओ। ये इक्वेशन 1 है, मैम 2। राइट? 2 में से वैल्यू निकालेंगे हम क्योंकि उसमें y है। So I will take value of y from equation number 2, that is 6 minus 4x. Question number 3 आता है। इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली क्योंकि एज आई सेड अगर कहीं पे कोएफिशिएंट 1 दिखता है x और y का, दोनों में से कहीं पे तो हम उसी को निकालते हैं, वो टाइम सेव करता है, एरर कम होते हैं हमारे क्योंकि फ्रैक्शन नहीं आता, ठीक है। मैम स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाना जरूरी है? नहीं, नो, इसमें नहीं है बेटा, ना सब्स्टिट्यूशन में ना एलिमिनेशन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कंपल्सरी है, बट बाकी किसी में नहीं। ओके मैम, कोई नहीं। तो फर्स्ट में डाल देते हैं 3x plus 2y minus 7 0. So 3x 12 8x minus 7 equals to 0. Minus 5 12 minus 7 कितना होता है? 5 5 minus 5 x equals to 1. Okay, you put the and value y is equal to 2. 6 minus 4 y equals to 2. बोलो श्लोक बोलो बेटा। मैम मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया, चलिए। Okay, first, second, any variable x लो y लो it's okay. But जो चीज मैं बताती हूँ उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तुम्हारा देखो इसमें मेरे को कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज नहीं थी जहाँ पे कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ सकता हो, राइट? तो ये चीज खास ध्यान रखनी है बड़ा। अभी फर्स्ट में लोगे वो फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू, x और y दोनों की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। यहाँ लोगे फिर एलसीएम लेना पड़ेगा और सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स टिल नाउ एलसीएम लेने में मिस्टेक करते हैं। स्टिल अभी तक एलसीएम करेक्ट ले लेंगे तो साइन में मिस्टेक कर दोगे, तो वो सब चीजें जितनी अवॉइड हो सकती है हम अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया ही था, समवॉट सम, खाली इधर नीचे 3 है बट दैट डजंट मैटर, तुम्हें रूट 2 को ही प्रूव करना था, ठीक है। सो जस्ट प्रूव रूट 2, और अगर रूट 2 अपॉन 3 करके पूरा जिसने
किया है तो वो भी चलेगा शायद, आई डोंट थिंक सो उसमें प्रॉब्लम आएगा, और अगर रूट 2 कराए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो जस्ट प्रूव रूट 2 इज इरैशनल एंड देयरफॉर रूट 2 अपॉन 3 इज आल्सो इरैशनल। मैम इससे बेसिकली हमें रूट 2 ही प्रूव करना था ना। Question number 11. What will be the polynomial? Question number 11 में Ma'am? minus root 2 है। मैम मैम वो 10th में रूट 2 को प्रूव करने की जरूरत थी रूट 2 को प्रूव करने की जरूरत थी कि नहीं? क्या बेटा, रूट 2 को प्रूव करने की जरूरत है कि नहीं है, क्या बोल रहे हो? मैम रूट 2 प्रूव करना है कि नहीं करना है, फर्क पड़ेगा? करना है बेटा। The reason is marks. See the marks. मैंने तुमको बोला था ना 3 और 4 में आएगा तो प्रूव करना ही है। 1 और 2 में होगा ना ये क्वेश्चन तो नहीं करना। तो वो p by q वो इधर ले गए, रूट 2 को एक साइड रखा, बाकी सबको एक साइड एंड खत्म। ठीक है, पर ये करना है। You have to 3 marks का। ओके मैम। Question number 11. Find all the zeros of the polynomial if two of its zeros are root 2 and minus root 2. तो सबसे पहले अल्फा ले रखा है रूट 2, बीटा ले रखा है माइनस रूट 2, तो पॉलिनोमियल हमारा बनेगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, और इधर माइनस है माइनस हो गया, तो x स्क्वायर कैंसिल, रूट 2 into रूट 2 होता है 2। डन। अब तुमको इतने सम्स की प्रैक्टिस कर ही है तो इतनी चीज पता चल ही जानी चाहिए तुरंत देखकर कि यहाँ पे जीरोस जो दे रखे हैं 2, ठीक है, यहाँ माइनस है, इधर है माइनस, ठीक है। अगर जीरोस एडिटिव इनवर्स होते हैं, मतलब तुमको क्वेश्चन में जीरो ऐसा है 2 minus 2 रूट 2 minus रूट 2 रूट 5 by 3 minus रूट 5 by 3, जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है, ऐसे ही जीरोस देते हैं, ठीक है। उस केस में b मतलब मिडिल में जो होता है वो हमेशा कैंसिल ही हो जाता है, क्योंकि उधर दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस करोगे तो क्या होगा 0, इन दोनों का प्लस करोगे 0, इन दोनों का प्लस करोगे तो 0, क्योंकि इट इज एडिटिव इनवर्स। तो तुम्हारा मिडिल टर्म जो है वो आएगा ही नहीं, x का टर्म नहीं आने वाला है। अब तुमको प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज छोटी छोटी चीज नोटिस करनी है, ठीक है। डोंट राइट हियर 1x और 0x, वो नहीं आएगा, तो इट्स ओके ना, 0x हम लिखते ही नहीं है डिवाइड करना। और अब इससे इसको करोगे डिवाइड एंड यू विल गेट द रिमेनिंग 0। ये टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन है आई गेस, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर? मैम इसका Yes, आंसर बता सकते 3 स्टेप्स थे, वो 3 स्टेप्स में जाना है, पॉलिनोमियल मिला, डू द डिवीजन एंड थर्ड विल बी स्प्लिटिंग द मिडिल, क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 12 on dividing f of x by a polynomial g of x, the quotient and remainder are given, find g of x। ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है आई गेस। पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है बोलो? P of x is equal to q of x and g of x minus r of x. अब इधर f of x और साथ में है g of x, q of x, ओके। तो g of x का फॉर्मूला होगा f of x, क्या इधर चला गया, माइनस r of x। all the values given to you, f of x is given, q of x is given, r of x is given, सब दिया है। अब खाली अगर साइन की मिस्टेक ना की हो तो सम राइट होगा। इसमें सबसे बड़ा एरर इधर आएगा, जिसने किया है भगवान जाने। देखो इधर माइनस 2x plus 4 है, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा ना तो बाहर माइनस की साइन है, तो अगर ये ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगी, इट विल बिकम प्लस 2x minus 4। शायद वो फिर डन दैट नहीं किया तो फिर पूरा सम गलत हो जाएगा बेटा। ये स्टार्टिंग स्टेप है और मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है इधर, क्योंकि बाहर होता है माइनस और तुम साइन चेंज करना भूल जाते हो।
अगर वो नहीं किया है तो फिर सम करेक्ट ही होगा, फिर आगे तो कुछ खास उतना था नहीं। हाँ आंसर बताएंगे मैम इसका? इसका g ऑफ x क्या आता है इसका? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ऐसा ही कुछ आ रहा है ना? Yes, हाँ x मैम वही आ रहा है। स्क्वायर माइनस x Study, solve the system of the equation by cross multiplication method. It is already given to you in a standard form. So mistake होने के chances होने नहीं चाहिए थे. It's a cross multiplication. Okay? सबको clear है cross multiplication method? ये मेरा already standard form में दे दिया है. तो तुमको करने की जरूरत नहीं थी. सीधा x के नीचे y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, y के नीचे कांस्टेंट एंड x के कोएफिशिएंट एंड 1 के नीचे. If one of the zero of the quadratic polynomial is 2, then find the value of k. बताओ. हम उसका आंसर बता सकते हैं। हाँ बोलो ना. x की वैल्यू 2 रखो. क्या आंसर आ रहा है k? -10. -10. -10. किसका आंसर पूछ रहे हो स्नेहा मेरे को? मैम क्वेश्चन 13 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आंसर करना ना मेरा. ये y कैंसिल हो गए 6 और -6. तो x की वैल्यू 1 आएगी. मैम 1 -1. 1 -1. मैम एलिमिनेशन से करके देखो बहुत इजी था. अगर आंसर चेक भी करना था ना तो एलिमिनेशन से करके, क्योंकि ऑलरेडी ये था ही, एलिमिनेट हो जाता, डायरेक्ट आंसर भी आ जाता, बट करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से था. Find the number of zeros of the polynomial for the shape of the banana given in the figure. Number of zeros कितने होंगे? Number of zeros. Zeros नहीं बताने. Number of zeros of polynomial for the shape of banana given in the figure. बताओ. 1. 1. Okay. You can see in the diagram वो सिर्फ एक जीरो पे ही x एक्सिस को टच कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे. इसीलिए ये जो ब्लैक डॉट्स दिए ना, तुमको वही कंसिडर करना है. तो ऐसे बेसिकली देखो तो ये पूरा एरिया टच हो रहा है, राइट. बट इतना अपने को डिटेल में जाना नहीं है. फॉर अस इट विल बी लाइक दिस. ओके, सो दिस 1 0. If the curve of banana is represented by this, then find it 0. 4 3s are 12. 4 minus 3 minus 4 plus 3. This will be the answer. Okay. Representation of curves whose 1 0 is. हाँ क्या बोलो? मैं आंसर बोलूं? हैंड रेस कर दो तो मेरे को दिख जाएगा इधर. देन आई कैन आस्क. हैंड रेस कर दो बेटा. जिसको कुछ भी पूछना हो ना तुरंत हैंड रेस कर दो, मुझे दिख जाएगा. The representation of curves whose 1 0 is 4 and sum of the 0 is 0, then the quadratic polynomial is whose 1 0 मतलब अल्फा बीटा में से एक चीज दे रखी है and sum of 0 दिया है 0, then the quadratic polynomial will be. मैंने अभी जो चीज बताई ना वो सेम चीज. सम जो है 0 हो रहा है. सम 0 कब हो सकता है? जब दोनों 0 एडिटिव इनवर्स होते हैं तब. बताया मैंने अभी जस्ट. क्या चीज मैंने बताई? x square minus 8 -4. सॉरी 16 -16. एक अगर 2 है दूसरा -2 है तो ऐसे केस में जब 0 होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि 2 प्लस -2 0 हो गया है ना. तो यहाँ पे भी बोला है कि सम ऑफ द 0 0 है. कब 0 होगा? एक 4 है तो दूसरा -4 होगा, तभी तो सम 0 होगा ना. तो ये एमसीक्यू है, इसलिए यू कैन डू सच थिंग्स. ओके, तो हो गया. -4 पता चल गया. एक अल्फा 4 है, दूसरा बीटा D x square minus 16. 16. डायरेक्ट आंसर आएगा. और जिसको नहीं समझ में आ रहा सॉल्व करना है. अल्फा की वैल्यू है 4, सम ऑफ द 0 यानी अल्फा प्लस बीटा है 0,
अल्फा की वैल्यू तो लो 4, तो बीटा की वैल्यू आ गई -2, ओके, एंड देन सॉल्व। अल्फा बीटा आने के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बेटा बनाना है। दूसरा वैल्यू पुट कर दिया, okay? From the banana picture above, we can see that a quadratic function is able to model the banana quite accurately if a is 1, b is 0, c is 0. And the polynomial is बताओ a0, a1, a0, c0. P of x is equal to x square. Correct? Because this is the standard form of a quadratic polynomial. Okay? इधर a की वैल्यू दी है 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, तो ये दोनों निकल जाएंगे। अब मैंने बताया था ना, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो b और c 0 चलेगा, a 0 नहीं होना चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो c काफी पेपर यूज योग्य डिवीजन बताओ। मैम ये वाला वापस समझा दो तो ये टेक्स्ट बुक का ही है 135 into 225 क्या HCF क्या आता है इसका 135 51 45 आता है। क्या आ रहा है 45 45 ये टेक्स्ट बुक का है यस मैम। एंड सेकंड का 51 okay 16 is again of textbook exercise 2.3 question मैंने दोनों ही वो क्वेश्चन पूछ लिए जो मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 okay two of its zeros √5/3 minus √5/3 अल्फा दिया है और बीटा दिया है So x square minus alpha plus beta, beta is minus √5/3 plus alpha into beta, okay, equals to 0. So this is x square, देखो ये हो गया cancel 0 X square minus 5/3 एक एलसीएम इसके बाद क्या करना है इससे भी डिवीजन तो इससे भी कर सकते हो x स्क्वायर माइनस 5/3 से भी थोड़ा डिफिकल्ट अगर लगे वरना इससे भी डिवीजन हो सकता है क्या बट लगे डिफिकल्ट तो ले लो इक्वल टू 0 करके एलसीएम ले लो इसको यहां पे रखो 3x square minus 5 और 3 इधर भी चला गया 0 3 0 right 3x square minus 5. This is your quadratic polynomial and you divide it. इसका आंसर -1 -1 ही रहेगा। Question number 17. सिंपल एलसीएम ले लो पहले 7/2 minus 11/3 y minus 2/3 मैम इसमें आगे कांस्टेंट रखना जरूरी है जैसे हम k 1/3 आगे नहीं रखेंगे तो भी चलेगा रखो तो बेटर है k नहीं रखना है k क्यों रखेंगे नहीं ये तो 0 से फाइंड कर रहे हैं ना बेटा इसमें तो कहां आएगा तो चलेगा ना हां इसमें तो कहां आएगा इसमें तो 0 ही हो जाएगा तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों एलसीएम की है तो इधर 3 मल्टीप्लाई 21 11/5 -2 = 0
21 2 का 42, 42 के फैक्टर्स 11 है 6 मैम 14 एंड मैम 14 and 3 14 3 का हाँ 14 3 का minus 14 plus 3 do it you'll get y 20 alpha and beta and then you have to verify. Question number 18 yes अब ये मैम ये एक बार मैम कर दो। इसका आंसर ये मेरे को देखना है कि कितनों ने राइट किया अगर जिसका ये सम राइट है ना मतलब रिड्यूसिबल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है 1 upon x को सपोज कर रहे हैं राइट 1 upon x को या सपोज कर रहे हो a 5 को नहीं कर रहे अगर दोनों इक्वेशन में 1 upon 5x होता ना तो मैं पूरा 1 upon 5x सपोज कर लेता दोनों इक्वेशन में नहीं है हम सपोज सिर्फ दो बार ही कर सकते हैं एक बार a के लिए और एक बार x के लिए और एक बार y के लिए बस राइट तो यहाँ पे 1 upon x को किया तो a 5 नीचे ही रहेगा या तो जिसने a plus b लिखा है वो भी गलत जिसने 5a plus 6b लिखा है वो भी गलत और मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों ने ये किया है ओके तो a upon 5 5 डिनोमिनेटर में है 5 से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है हम एलसीएम ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं तो नीचे 5 रहेगा 1 upon y को सपोज किया है well I will take LCM and एक इक्वेशन फॉर्म होगा and same सेकंड में 1 upon 3x है 1 upon x है a upon 3 minus 3 ये मैं बता दूं मैम हम 1/x ज्यूम करते एक तो भी 5 डिनोमिनेटर तो भी 5 तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा ना मैंने 1 upon x को ही सपोज किया है ना बेटा 1 upon 5x को कैसे लिखते हो ऐसे लिखते हैं this is 1 upon 5x 1 upon 5 into 1 upon x जिसमें तुमने 1 upon x को a सपोज कर लिया है तो a into 1 upon 5 रहा ना तो बेटा 5 तो डिनोमिनेटर में ही है इन शॉर्ट व्हाट आई एम सेइंग जो नंबर का तुमको कोई हेराफेरी नहीं करनी है मेरे को प्रॉब्लम वेरिएबल्स है वेरिएबल डिनोमिनेटर में उससे प्रॉब्लम है अगर 5 यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो वो वही रहेगा अगर ऐसा होता तो दोनों इक्वेशन में 1 upon 5x 1 upon तो ले लेते क्योंकि अब तुमने 1 upon 5x को सपोज कर लिया तो तुम सेकेंड इक्वेशन नहीं लिख सकते वहां पे गड़बड़ ठीक है इसीलिए 1 upon x को सपोज किया क्योंकि 1 upon x दोनों इक्वेशन में 1 upon y भी दोनों इक्वेशन में यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी ये हुआ a यहाँ पे भी 3 रहेगा 7 भी रहेगा या into 1 रखो तो ये क्या हो गया 1 upon y यानी कि यानी 3b upon 7 in short 3b upon 7 मैम इस सम का आंसर बहुत बड़ा है मैम ये एक बार सम सॉल्व कर दोगे सम सॉल्व कर ओके इक्वेशन क्या आ रहा है इसका a upon 5 6a 6a plus 5b is equals to 360
whether नीचे दोनों मल्टीप्लाई 6 5 का 30 30 इधर चला गया 12 into 30 और सेकंड 7a 9b 7b is 21 into 8 is 168 ठीक है करो सॉल्व किससे कर रहे हो एलिमिनेशन ही करेंगे सॉल्व बाय एलिमिनेशन इसको पूरे इक्वेशन को हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये इसको एलिमिनेट करना है तो 9 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं रहता है तो यहाँ पे 9 यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करो एंड टेल गुड 369 का कितना हो रहा है 360 into 9 कितना आ रहा है 3240 what is 360 into 9 3240 43 7 5 9 5 and what is 168 into 5 840 840 4080 यही आ रहा है Yes, ma'am. ठीक है 89 कैंसिल तो होगा मैम क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है क्वेश्चन इज करेक्ट ओनली तो 4080 अपॉन 80 ये मैम नहीं होगा क्योंकि 89 प्राइम नंबर है तो मैं एक ये x की वैल्यू उल्टी हो जाएगी और देन यू हैव टू पुट किसी में भी यहाँ पे कहीं पे भी पुट कर दो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ना इसमें पुट करो 3 से नंबर कैंसिल हो जाएगा 4080 a की वैल्यू नीचे 3 है 3b by 7 equals to 8 so this is 3 1 3 6 1360 89 minus 8 equals to 3b upon 7 89 और 8 मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो और फिर 7 by 3 कर दो कितना आ रहा है बताओ 89 into 8 9
720. 48. This is 648 upon 89. 3 by 7. इधर चला जाएगा 648 upon 89. ये 3 by 7 इधर चला जाएगा 7 by. Plus 16 again ये 3 से cancel. 3 plus 6 216. 216 into 7 upon 89. So that is 216 upon 7 into 7. That is 1512 upon 8. 15. Yes. This is the value of B. और x और y इनके उल्टे होंगे रेसिप्रोकल होगा. मैम Yes. मैम ये जो सम है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे तो a और b की वैल्यू अलग आ रही है. नहीं बेटा वैल्यू सेम ही आएगी. वैल्यू अलग नहीं आएगी. दिखाओ मुझे दिखाओ. शो मी नोटबुक. कौन बोला? कौन? मानस बोला? यस मैम. नोटबुक दिखाओ मुझे. तुमने किया है कि नहीं किया? किया है मैम. दिखाओ. तो पास लो. पास में लो. पास में लो. कौन सा वाला सम है बेटा? नीचे वाला है कि ऊपर पूरा है? कहाँ से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? नहीं इक्वेशन दिखाओ ना. हाँ यहाँ पे. मेरे को दिख ही नहीं रहा तुम्हारा.